हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अनाटमी सब्जेक्ट की। अनाटमी मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम हर एक चीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें हम हर एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। इसमें एक और वर्ड आता है, वो है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन मतलब कि एक हिस्से को काटना सिर्फ और कट करके उसके बारे में पढ़ना डीपली इज नोन एज anatomy. Anatomy and dissection is not a similar word, it is a different word. So let's we see today that human anatomy is the science which deals with the structure of the human body, and the term anatomy is derived from the Greek word that is anat and meaning is cutting up. तो कोई भी चीज जिसको हम काट के उसके डीपली हर एक लेयर्स को पढ़ते हैं, हम उसको बोलते हैं anatomy. So that the term anatomy is the dissection is a Latin equivalent of the Greek anatomy. However, the two words anatomy and dissection are the most are not synonyms. ये दोनों एक जैसे words नहीं हैं. Dissection is different and anatomy is different. Dissection सिर्फ एक टेक्निक होती है and anatomy पूरा एक फील्ड है जिसमें हम हर एक ऑर्गन के और हर एक लेयर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं. So particularly we will read about today human anatomy. So language of anatomy is that कि how first before reading about the anatomy we will have learn about the terms, that is language of anatomy. There are first anatomical positions in which that anatomical position the person is standing. Person बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होगा जिसमें दोनों पैर the feet together, दोनों पैर एक साथ होंगे, दोनों हाथ साइड में होंगे and the palm facing forward. This is called anatomical position. So let's we read here that how the anatomical position work. Anatomical position when a person is standing straight with the eyes looking forward, as I have told you now only कि the person is standing, person बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है and the eyes is forward, आंखें दोनों सामने हैं and both the arms of the side of the body, palm facing forward, both feet together, and the position is called anatomical position. That while standing the person is mainly the eyes is forward, both legs together and the hands is on the side, and the hands on the side the palm facing towards forward and the thumb is on the lateral side. तो बात अगर हम करें इस मुद्दे की, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम खड़े हो रखे हैं तो दोनों पैर एक साथ होंगे, आंखें बिल्कुल सामने की तरफ, पाम दोनों साइड में होंगे. So it is called anatomical position. So first is anatomical and the second position is supine position. Supine means बिल्कुल जैसे हम रोज लेट जाते हैं, हम सीधा बेड पे से लेटते हैं, वो होती है supine position. बट इसमें है क्या, जब हम लेट रहे हैं हमारे फेस ऊपर की तरफ ऑन द रूफ, हमारी आंखें रूफ की तरफ होंगी एंड दोनों हाथ जो होंगे हमारे साइड में होंगे और दोनों पैर साथ में होंगे. So let's we read that supine position when a person is lying on his or her back, arms by the side, palm facing upwards, roof की तरफ जैसे अभी बताया, and the feet put together, the position is called supine position. So we have read about the two positions. First is anatomical position and second is supine position. So let's we go to another. Next third is prone position. जैसे हम सीधे लेटे हुए हैं अपनी बैक पे, दैट इज सुपाइन, बिल्कुल सीधा लेट जाने को बोलते हैं हम सुपाइन पोजीशन. एंड प्रोन पोजीशन इज जिसमें हम बिल्कुल उल्टा लेट जाएंगे, बिल्कुल उल्टा लेटेंगे, आपका जो हमारा आगे का हिस्सा होगा पेट के बल लेट जाना अगर हम कॉमन भाषा में बात करें तो. सो प्रोन पोजीशन द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और हर फेस, चेस्ट एंड द एब्डोमेन इज सेड टू बी अ प्रोन पोजीशन. तो एब्डोमेन वर्ड इज यूज्ड फॉर योर स्टमक इन साइंस और इन साइंटिफिकली स्टमक को हम एब्डोमेन बोलते हैं. अगर हम उल्टे लेट रहे हैं तो हमारे चेस्ट, फेस एंड एब्डोमेन तीनों हिस्सा जो है हमारे नीचे सरफेस से टच हो रखे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन. एंड नेक्स्ट इज लिथियोटॉमी पोजीशन विच इज मेनली दिस पोजीशन इज यूज्ड व्हाइल डिलीवरी द बेबी. जब हम डिलीवर करते हैं बेबी को, देन द लेडी इज इन द lithotomy position. So lithotomy position is that when the lady has to be sit and both the legs upward, दोनों पैर ऊपर की तरफ होंगे, in which the pelvis region has been relieved, बिल्कुल खुला हुआ होगा. So the lithotomy position is the person is lying on her back, बिल्कुल बैक पे से लेके हाफ सिटिंग जिसको हम बोलते हैं,
वैसे वो लेटा होगा, विद लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड ऑन द स्ट्रैप। दोनों पैरों को एक स्ट्रैप, एक सहारा दे दिया जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम के लिए ऐसे बैठना बहुत मुश्किल होगा। सो दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड व्हाइल डिलीवरी द बेबी। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जब हम डिलीवर करते हैं बेबी को, तब हम मेनली ये पोजीशन को कराते हैं, दैट इज लिथियोटॉमी पोजीशन। सो लेट्स वी गो टू अनदर स्लाइड। फॉर लर्निंग वी कैन लर्न BFPT। फॉर B स्टैंड्स फॉर बॉडी इरेक्ट, आपकी बिल्कुल बॉडी सीधी होगी। दैट इज F, फीट स्लाइटली अपार्ट और टुगेदर बोथ इज राइट। थर्ड इज P, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, हाथ में साइड में रहेंगे, थंब बाहर की तरफ रहेंगे। T is thumb point away from the body, thumbs body से away रहेंगे। It's so simple to learn. Next we go for, this is supine position, this is prone position, next is lithotomy position which I told you. Next we will read about the planes. जैसे हमने अभी एनाटॉमी में बात करी है कि हमें थोड़े से वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं लर्न करने के लिए, तो हम उस वर्ड्स को लर्न करने के लिए, हमें पहले एनाटॉमी को लर्न करने के लिए पहले थोड़े से वर्ड्स, थोड़ी सी टर्म्स को लर्न करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स वी गो फॉर द प्लेन्स। प्लेन जो होते हैं उसमें हम 3 टाइप के प्लेन्स की बात करेंगे, दैट इज सेजाइटल, सेकेंड इज कॉरोनियल एंड थर्ड इज ट्रांसवर्स। सो दैट प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, वो प्लेन जो हमारे बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, और बीच में से अगर एक कोई भी मैं स्टिक लूं या नाइफ लूं, वट एवर आई थिंक, कुछ भी लूं, और उसको मैं ऐसे 2 हिस्सों में से डिवाइड करूंगी बीच में से, तो बीच में से हम डिवाइड करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी को, तो वो 2 हिस्सों में बट जाती है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। सो दैट इज मिड सेजाइटल प्लेन। मिड अपने आप में ही बता रहा है बीच का हिस्सा, बीच में से ही कट रहा है। सो अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग into 2 equal halves, 2 हिस्से में वो बांट देता है, राइट एंड लेफ्ट, दैट इज मिड सेजाइटल प्लेन। सो और सेजाइटल प्लेन, हम मिड सेजाइटल प्लेन बोलते हैं या फिर सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। मिड सेजाइटल इज दैट फ्रॉम द मीडियन, फ्रॉम द सेंटर वी आर कटिंग द बॉडी एंड द बॉडी इज डिवाइडेड into 2 parts, right and left. Then we will go for the next, the plane at the right angle to the sagittal or the median plane which divides the body into anterior and posterior. तो coronal plane को जानने से पहले अब हम बात करते हैं anterior and posterior word की, कि the term anterior and posterior what does it mean? So anterior is that आगे का हिस्सा, that कि हमारा जो आगे का हिस्सा है हम उसे बोलते हैं anterior, and second is posterior, पीछे का हिस्सा, ठीक है। हमारे जो बैक है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, और जो हमारा आगे का है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। सो अब हम बात करेंगे वो प्लेन जो हमारे पूरी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, आगे के एंड पीछे के, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। सो कोरोनल प्लेन विल बी डिवाइडेड इनटू फ्रॉम द मिडिल। अगर हम बॉडी को यहां से बीच में से काटेंगे तो हम उसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। So let's we see that the plane at the right angle of the sagittal, अब हम ऐसे काट रहे थे बॉडी को और अब हम ऐसे काट रहे हैं, तो ये क्या है, that will be making a 90 degree right angle, okay? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है the right angle to the sagittal or the medial plane which divides the body into anterior and posterior halves is called coronal plane. Next is transverse plane. If we cut the body, that transverse is used for this one. So all these 3 planes are of the 90 degree. These are of the 90 degrees. So this transverse plane is that if we cut the body, then our body is divided into 2 halves, that is upper body and the lower body. As we read in the anatomy also, we have that first we will read about the upper body and next we will read about the lower body. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसवर्स प्लेन की, तो ट्रांसवर्स प्लेन 2 हिस्सों में बांटने के लिए क्या करते हैं, बीच में से कट करते हैं, जो ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे के हिस्से को अलग करता है। अगर हम देखा जाए तीनों को अगर हम बांटते हैं और तीनों को एक साथ रखते हैं तो तीनों मिला के एक राइट एंगल बनाता है। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में, like this, these are making the right angles, mid sagittal plane, transverse plane and the coronal plane, जो बीच में से इसे कट करता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर।
तो 3 प्लेन्स हो गए, ठीक, एंड 3 पोजीशंस हो गई। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द टर्म वी यूज फॉर द ट्रंक। अगर हम ट्रंक की बात करें, ऊपर की बात करें, तो उसमें हमारे पास ट्रंक्स में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। जैसे हमने अभी 2 पढ़ी, दैट इज एनाटॉमी में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं। तो जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम वेंट्रल भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट ऑफ द ट्रंक। देन डोर्सल, दैट इज, और द पोस्टीरियर, दैट इज बैक ऑफ द ट्रंक। नेक्स्ट थर्ड इज मीडियल। अभी हमने बात करी थी कि मीडियल या मिड सेजाइटल क्या होता है। मिड मीन्स हमारे बीच का हिस्सा, तो जो चीज हमारे बीच के हिस्से से पास होगी तो दैट इज मीडियल पार्ट। एज वी से दैट, अगर हमारे पास ऐसे ही रखा है तो ये अगर मैं यहां ले आऊंगी तो ये मीडियल हो गया, अगर इस दूर ले जाऊंगी तो बाहर, इसका उल्टा होता है लेटरल, ठीक। तो अब हम बात करते हैं एंटीरियर पार्ट, दैट इज फ्रंट एरिया, आगे का हिस्सा हो गया, पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा हो गया। ऐसे ही मीडियल पार्ट की बात करें तो दैट इज मीडियन प्लेन, जो अभी बताया मिड सेजाइटल में जो बीच के हिस्से जाएगा, यहां जो इतना पास होएगा तो हम कहेंगे दैट इज मीडियल प्लेन। नोज इन द मीडियल, नोज हमारी मीडियन प्लेन पे है, ओके। देन लेटरल, जो मीडियन प्लेन से दूर होगा। मीडियन प्लेन से दूर क्या है, हमारे ईयर्स, ईयर्स हमारे मीडियन प्लेन से दूर हैं, दैट इज लेटरल पार्ट। नेक्स्ट वी विल गो फॉर प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल वो चीज जो हमारे सिर के पास में होगी थोड़ी सी, और उसके उल्टा डिस्टल, जो हमारे सिर से दूर होगी बट हमारे पैरों के पास होगी, दैट इज डिस्टल। देन वी विल गो फॉर सुपरफिशियल, जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे स्किन इज सुपरफिशियल पार्ट एंड बोन्स आर डीप पार्ट। सो वी विल से सुपरफिशियल, जो हमारे ऊपर का है, जो हमारी स्किन से जुड़ा हुआ है, दैट इज सुपरफिशियल। इसको हम दूसरा वर्ड भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस। देन वी विल गो फॉर इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल अगर कहीं पे लिखा है, लाइक वी विल सी द लाइन दैट द हैंड वी हैव टू टेक व्हाइल डूइंग योगा इप्सिलेटरल। सो इप्सिलेटरल मीन्स कि हमें राइट हैंड एंड राइट लेग का ही यूज करना है, तो राइट इज इप्सिलेटरल। इफ वी विल थिंक कि राइट एंड लेफ्ट, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग का यूज करना है, तो दैट इज contralateral, that of an opposite side of the body. Then next is invagination and evagination. Invagination is that projection inside, जो अंदर की तरफ होगा, evagination जो बाहर की तरफ होगा। तो ये टर्म्स है जो हमारी रिलेशन हमारे ट्रंक से है। ट्रंक में हमारे ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने थोड़े से बातें करी हैं जो हमारे उसके हमेशा ऊपर, उसके अपोजिट चीज के बारे में बात करी है। पहला था हमारा एंटीरियर, मतलब आगे का हिस्सा, इसका दूसरा नाम है वेंट्रल। दूसरा था पोस्टीरियर, इसका दूसरा नाम है डोर्सल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देन मीडियल एंड लेटरल। मीडियल जो मीडियल वाली साइड है, लेटरल जो मीडियल से दूर है, लेटरल वाली साइड हो गया। देन प्रॉक्सिमल, जो हमारे सर के बिल्कुल थोड़ा पास हो, प्रॉक्सिमल। इसका अनदर नेम इज दैट क्रेनियल एंड सुपीरियर। इसमें ये भी लिखा है इज क्लोज टू द हेड एंड ऑफ द ट्रंक, हेड के एंड ट्रंक के एंड है, एक ये एंड है हमारा, एक ये एंड है, नीचे का हिस्सा है, तो इसलिए ऊपर वाले हिस्से में है तो क्या होगा, प्रॉक्सिमल, एंड नीचे वाला हिस्सा होगा तो पैरों की जो क्लोज होएगा तो कॉर्डियल और इंफीरियर, दैट इज क्लोज टू द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल, जो स्किन से थोड़ा जुड़ा हुआ हो उसे हम बोलेंगे सुपरफिशियल। एंड देन इसमें बात करेंगे इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल जो हमने सेम साइड की बात करी, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। कॉन्ट्रोलेटरल, दैट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ओके। Then invagination is inside and evagination is outside. As we say that muscles are evagination as compared to bones. Okay, वो थोड़ी बाहर है. And as we say bones are invagination, वो अंदर है as compared to muscles. Next we go. See, this is medial, ये पास की तरफ है, and this is lateral, जो बाहर की तरफ है. ये हमारा
मीडियल, ये हमारा मीडियल वाला साइड हो गया, इधर वाली साइड, और ये हमारा मीडियल वाली साइड हो गई, इधर वाली साइड, और ये क्या हो गई, लेटरल वाली साइड हो गई, इधर की साइड। मिड लाइन, ये आपकी बिल्कुल जो पर्पल लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या हो गई, मिड लाइन। ये हमारे प्लेन्स जो हमने अभी बात करी इन प्लेन्स की, पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा, इंफीरियर नीचे का हिस्सा, एंटीरियर आगे का हिस्सा, इंफीरियर उसका उल्टा सुपीरियर, पोस्टीरियर उसका उल्टा एंटीरियर, ओके, मीडियल उसका अपोजिट लेटरल। नेक्स्ट वी गो फॉर दी अपर लिम्ब। अभी हमने कहा हमने ट्रांसवर्स प्लेन बनाया था, ट्रांसवर्स प्लेन में हमने दो हिस्सों में बांटा था, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला हिस्सा है हमारे पास, तो अब हमने बात करी अपर लिम्ब। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, जो हमारे पेल्विस रीजन से हम कट करें। पेल्विस रीजन मींस आपके हिप वाले रीजन से अगर हम कट करें तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो हम बात करते हैं अब कुछ टर्म्स की जो हमारे अपर लिम्ब के लिए ही यूज हो रही है। सो अपर लिम्ब के लिए अभी हमने बात करी थी एंटीरियर की, पोस्टीरियर की, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, प्रॉक्सिमल, पाल्मर, डॉर्सल, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। हम इन टर्म्स की बात करेंगे अपर लिम्ब के लिए। सो वेंट्रल रीजन और द इंटीरियर इज दैट फ्रंट ऑफ द पार्ट। अभी बात करी हमने आगे का हिस्सा। अगर हम बात करें आगे अपर बॉडी की तो फेस, फ्रंट पार्ट ऑफ द थ्रोट, चेस्ट, स्टमक, ये हमारा अपर लिम्ब का हो गया। एंड पोस्टीरियर पीछे की बात करें, हमारा सर्वाइकल रीजन, ऑसिपिटल रीजन, योर बैक, स्कैपुलर रीजन, योर होल बैक, एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल पार्ट। देन मीडियल बॉर्डर। अगर हमने अभी एनाटॉमिकल पोजीशन बनाए और एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे रखेंगे और हम अगर देखें इस एनाटॉमिकल पोजीशन में ही, तो हमारा जो ऐसे जो पाम आ रहा है, ये जो हमारी लिटिल फिंगर है वो हमारी मीडियल साइड है एज कंपेयर टू दी थंब। थंब इज लेटरल साइड। अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को कंपैरिजन करें, तो ये क्या है आपका मीडियल साइड है और ये क्या है आपकी लेटरल साइड है। सो एज वी रिटन हियर आल्सो दैट medial border lies along the little finger medial borders of the forearm and the arm। क्यों इन्होंने forearm and arm ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये कहाँ का है, अपर लिम्ब का। सिर्फ इसी की वजह से उन्होंने एग्जाम्पल लिया हमारे फिंगर्स का। अगर हम ऐसे करके फिंगर को रखते हैं और ऐसे रखने के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा जो लिटिल फिंगर है वो हमारी मीडियल साइड है या मीडियल साइड से ज्यादा क्लोज है, इसलिए ये मीडियल है एज कंपेरिजन ऑफ द थंब। अगर हम कंपैरिजन करेंगे थंब से तो ये मीडियल है। अदरवाइज अगर मैं कह सकती हूँ कि हमारा लेटरल पार्ट है हमारा हाथ, अगर मैं इसको दूर रख दूंगी तो ये लेटरल हुआ एज कंपेयर टू द बेली। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तभी हम पता लगता है कौन सी चीज लेटरल है, कौन सी चीज मीडियल है। मीडियल वर्ड खुद ही कहता है जो बीच की जो लाइन बन रही है, मीडियन जो बन रहा है, जो उसके पास होगा एज कंपेयर टू द अदर थिंग। अगर हम उससे दूसरी वाली चीज से कंपैरिजन करेंगे तो अगर हम देख रहे हैं तभी हम पता लग रहा है कि मीडियल बॉर्डर कौन सा हुआ, फिंगर में लिटिल फिंगर का, एंड लेटरल बॉर्डर का हुआ थंब हुआ। यहाँ पे लिखा है लेटरल बॉर्डर फॉलोज टू द थंब, लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म एंड द आर्म। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल। अभी हमने बात की प्रॉक्सिमल क्या है, बिल्कुल पास है, किसके, हेड के पास है। सो प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब व्हाइल डिस्टल इज अवे फ्रॉम द रूट। वो क्या हो गया, दूर हो गया। सो वी से दैट प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब। ठीक, अगर हम बात करें नेक की और स्टमक की, विच इज प्रॉक्सिमल, सो आवर नेक इज प्रॉक्सिमल एज कंपैरिजन टू दी योर स्टमक। सो नेक्स्ट इज पाल्मार एक्सपेक्ट। पाम खुद ही बताता है दिस इज पाल्मार एक्सपेक्ट, तो पाल्मार एक्सपेक्ट हो गया ये। एंड डॉर्सल इज दैट उसका बैक ऑफ द पाम, दिस इज डॉर्सल एंड दिस इज पाल्मार। सो पाल्मार एंड डॉर्सल एक्सपेक्ट। देन फ्लेक्सर ऑफ दैट, अगर हम बात करें फ्लेक्सर ऑफ द अपर लिम्ब की, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज दैट जिसमें हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमारे एक्सटेंड हो रहा है वो बॉडी, दैट इज एक्सटेंशन। एंड फ्लेक्सर इज दैट जो बिल्कुल थोड़ा पास है। सो फ्लेक्सर इज दैट, फ्लेक्सर एक्सपेक्ट इज अ फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब। फ्लेक्सर इज द अपर लिम्ब का फ्लेक्शन। अगर हम आगे की तरफ झुकेंगे दैट इज फ्लेक्सर, पीछे की तरफ जाएंगे तो दैट इज एक्सटेंशन, दैट इज एक्सटेंसर। नेक्स्ट वी विल यूज फॉर दी दैट द लोअर लिम्ब। अभी हमने बात करी सिर्फ अपर लिम्ब की, अब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की, क्योंकि अभी हमने बात करी थी किसकी, ट्रांसवर्स प्लेन की। ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, वो दो हिस्सों में बांट देता है, अपर एंड लोअर। ठीक, देन रिलेशन टू लोअर लिम्ब इज दैट पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें मतलब पीछे की बात,
हमारा हिप्स का रीजन, हिप्स से नीचे आएंगे पीछे का थाई का रीजन, नीचे काफ मसल्स एंड योर एंकल जॉइंट्स. देन वी विल गो फॉर एंटीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट इज ऑफ द फ्रंट पोर्शन. फ्रंट पोर्शन इज फॉर द थाई, knees and then the shin bone. Next we will go that medial border. अगर हम medial border की बात करें तो हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे. पहले हम अगर हम ऊपर से देख रहे थे तो क्या था, हमारी लिटिल फिंगर मीडियल साइड थी एज कंपैरिजन टू द थंब. अब क्या होगा, अब हमारा ग्रेटर टो वो क्या होगा, वो मीडियल साइड है एज कंपैरिजन टू योर स्मॉलर लिटिल टोज. सो दैट मीडियल बॉर्डर लाइज along the big toe or the hallux medial border of the leg and the thigh. So the lateral border is along with the little toe lateral border of the leg and the thigh. तो leg and thigh में अगर बात करें तो हमारा जो छोटी वाली जो कन की उंगली होती है बिल्कुल छोटी सी, वो है हमारी lateral side, और जो बड़े वाला thumb है greater toe है वो क्या है, medial side. So flexor of the back, बैक अगर हम बात करें नेक्स्ट में इसकी लोअर रीजन की, सो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, तो हम उन दोनों की बात करते हैं. देन प्रॉक्सिमल इज दैट जो बिल्कुल पास है आपके ऊपर. अगर हम हिप का रीजन एंड योर एंकल जॉइंट, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो एंकल जॉइंट क्या है, वो डिस्टल है, और जो आपका हिप रीजन है वो प्रॉक्सिमल है. सो द रिलेशन ऑफ द कॉमनली फॉर द एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर हम बात करते हैं वेंट्रल की, तो वेंट्रल क्या होता है, पूरा बेली का रीजन जो हमारा एंटीरियर आपका आगे का हिस्सा है, दैट इज बेली रीजन अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें. देन डॉर्सल रीजन में अगर हम बात करें पीछे की बैक रीजन, दैट इज पोस्टीरियर रीजन, वो क्या हो गया, डॉर्सल. क्रेनियल इज फॉर द हेड, हेड की बात करेंगे तो हेड रीजन, एंड कॉर्डियल इज फॉर द टेल, जो हमारा टेल वाला हिस्सा होगा वो हमारा कॉर्डल रीजन होगा. एम्ब्रियोलॉजी में होगा, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. देन द बॉडी मूवमेंट्स, हमारे पास बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में. पहला मूवमेंट है हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट. तो ग्लाइडिंग मूवमेंट रिलेटेड टू दैट बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे होना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट. सो ग्लाइडिंग मूवमेंट इज दैट रिलेटिवली फ्लैट सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ and from the side to side with respect to one another. The angle between articulating bones does not changing the significantly. वो चेंज नहीं होती है, ये हमारी क्या है, आगे और पीछे हो रही है और आर्टिकुलेट करती है बोन्स का. अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा एल्बो जॉइंट, इट विल रिमेन सेम ओनली, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा. ये ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गया, दैट विल बी कॉल्ड ग्लाइडिंग मूवमेंट. नेक्स्ट वी गो फॉर एंगुलर मूवमेंट. एंगुलर मीन्स द एंगल मूवमेंट between the articulating of the bone decrease और increase. अगर हम बात करें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का, अगर ये फ्लेक्शन कर रहे हैं तो अभी एंगल क्या है, इतना है. एक्सटेंशन करेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा, इट विल बी 180, दैट विल बी 60, इट विल बी 90. Okay, so this is called angular movement. So angular movement, there is decreasing in angle between the articulating bones and in extension and there in increase. Extension में angle क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. Flexion में क्या हो जाता है, घट जाता है. So then next is rotation. Rotation we do daily. As if we will say that temporomandibular joint we will say, तो अगर इसको हम गोल घुमाएंगे तो that is called rotation. Rotation of the neck. And special movements are there that we say pronation and then your jaw region, इसमें हम साइड में भी लेके जा सकते हैं इसको, और ऊपर और नीचे भी लेके जा सकते हैं, खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं. सबके अलग अलग स्पेशल मूवमेंट्स हैं जो दूसरा जॉइंट नहीं कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल मूवमेंट्स. देन फॉर अपर लिम्ब ऑफ द मूवमेंट इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, circumduction, medial rotation and lateral rotation. So first is flexion. Flexion is of the, अगर हम बात करें सिर्फ अपर लिम्ब की, तो अपर लिम्ब में अगर हम हाथ की एग्जांपल लेते हैं अपना आर्म एंड फोर आर्म का, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, जो हमारी बॉडी के थोड़ा पास है, दैट इज फ्लेक्शन. एक्सटेंशन, जहां पे हमारा एंगल बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन. तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या हो गए, इन दोनों के अपोजिट हो गए. देन ये टू खत्म हो गए. देन वी विल गो फॉर थर्ड वन, दैट इज एबडक्शन, उसका अपोजिट एडडक्शन. अब ऐड मतलब क्या होता है, कोई चीज को हमारी बॉडी के ऊपर ऐड होना. तो अगर मेरा हाथ यहाँ है तो ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एडडक्शन. ये हो रहा है बिल्कुल ज्वाइन हो रहा है, इज कॉल्ड एडडक्शन. अगर हम इसको दूर करेंगे तो एब मतलब कोई चीज गलत है हमारी बॉडी में, एब है, कुछ गलत है, तो दैट इज हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे. एब मतलब इज अ रॉन्ग हैबिट और अ बैड हैबिट, तो एबडक्शन. तो एबडक्शन क्या हो गया, दूर हो गया. एडडक्शन कोई चीज ऐड हो गई हमारी बॉडी में, तो एडडक्शन एंड एबडक्शन,
दीज टू क्लियर। देन सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन क्या हो गया, घुमाना कोई चीज को, तो कोई भी चीज को हम घुमा रहे हैं, शोल्डर जॉइंट को, अपने लेग को, तो सर्कमडक्शन, सर्कम मीन्स सर्कल, तो सर्कुलर मोशन में घुमाना इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। देन मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, मीडियल जो हमारी मिड लाइन के बिल्कुल पास होगा, अगर यहाँ आए तो मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, बाहर चला गया मीडियल लेटरल। देन प्रोनेशन, एडडक्शन, एबडक्शन, ओपोजिशन एंड सर्कमडक्शन। अब ये प्रोनेशन मीन्स दैट बैकवर्ड ऑफ द हैंड, जिसको हमने डॉर्सल रीजन बोला था, और दिस पामार, तो ये क्या हो गया आपका प्रोनेशन। अगर हम बात करें सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, सो सुपिनेशन इज अबव, प्रोनेशन इज दिस। देन एबडक्शन ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स मीन्स योर फिंगर्स हेयर, सो एबडक्शन करना है, एडक्शन करना है, एडक्शन दूर दूर करना है या पास में, तो एड मतलब पास में करना, तो एडक्शन, एबडक्शन दूर में करना। देन ओपोजिशन ऑफ द थंब, थंब अगर हमारा हमेशा हैंड ऐसे रहता है तो हम इसको अपोज करेंगे तो इट विल बी रिमेन लाइक दिस ओनली, ये दोनों कैसे रहेंगे, हमारे ऐसे बंद रहेंगे, तो ऐसे हो गया, तो हो गया पोजिशन ऑफ द थंब। देन सर्कमडक्शन ऑफ द थंब, थंब का सर्कमडक्शन करना, सिंपल। तो ये टर्म्स बहुत इजी हैं, अगर हम इसको वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे it will be go through. Then we see here this is ulnar deviation, this is like this. ulnar deviation means अभी हम आगे बात करेंगे हमारी कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, तो ulnar deviation ये न्यूट्रल है, बिल्कुल बीच में है। अगर हम ऐसे लेके जाएंगे बिल्कुल, अगर ये वाले हाथ को देखें और ये ऐसे जाएगा तो ये रेडियल डेविएशन, क्योंकि हमारे थंब वाली साइड रेडियल बोन प्रेजेंट होती है, और जो हमारी ये फिंगर वाली साइड यहाँ पे अल्नार पोजीशन होती है, तो इसलिए इसको बोला गया रेडियल डेविएशन। ये इधर वाली साइड जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये रेडियल डेविएशन हो जाएगा। देन दिस इज एडक्शन एंड दिस इज एबडक्शन। एबडक्शन में ये दूर लेके जा रहा है, क्यों क्या है, वो एब है। देन एडक्शन, ये इसको पास लेके आ रहा है, इज एडक्शन। एंड न्यूट्रल जो हम हमेशा रखते हैं अपने हाथ को, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। देन विल गो फॉर प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। सुपिनेशन ऐसे ऊपर करा है एंड प्रोनेशन ऐसे करा है। एक्सटेंशन अगर हम देखें तो एक्सटेंशन हो गया एंड फ्लेक्शन हो गया, अगर हम ऐसे करें फ्लेक्शन, और दिस कॉल्ड एक्सटेंशन एंड दिस इज न्यूट्रल। देन लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब इज फिनिश। अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन ऐसे बहुत सारी टर्म्स पढ़ी। सेम टू सेम हम लोअर लिम्ब में बात करेंगे, बिल्कुल लोअर लिम्ब में भी ऐसे ही होता है। लोअर लिम्ब में फ्लेक्शन ऑफ द थाई, एक्सटेंशन ऑफ द थाई एंड एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, फ्लेक्शन ऑफ द नी। अब यहाँ पे नी जॉइंट, यहाँ वहां क्या था हमारा एल्बो जॉइंट, जिसमें मीडियल एंड लेटरल रोटेशन किया था, ऐसे ही यहाँ पे हमारा नी जॉइंट आता है। नी जॉइंट का फ्लेक्शन करते हैं, एडक्शन करते हैं। अगर हम सपोज करें हमारा नी जॉइंट है और बिल्कुल सीधा है, तो उसका फ्लेक्शन ऐसे होगा पीछे की तरफ, और ये क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। फ्लेक्शन ऑफ द थाई, फ्लेक्शन करना सामने, एक्सटेंशन ऑफ द थाई पीछे लेके जाना। एबडक्शन, एडक्शन, पास हम लेके आ रहे हैं अपने पैर को, ये पैर है तो एबडक्शन होगा तो क्या होएगा, दूर जाएगा। एडक्शन होएगा तो बॉडी के पास आएगा, मीडियल बॉर्डर के साइड में। एक्सटेंशन ऑफ द नी, जो स्ट्रेट हो जाएगी हमारी नी, अगर ये नी है तो ये फ्लेक्शन हो गया, और ये एक्सटेंशन जिसमें हम हमेशा खड़े रहते हैं और फिर आगे की तरफ खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द नी। प्लेंटार फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सम मतलब अब हम बात करी कि ऊपर का हिस्सा होता है हमारे हाथ का, ऐसे ही हमारा अगर ये पैर है, अगर मेरे पैर ऐसे है, ये हमारी टोज है, ये हमारा ग्रेटर टो है, तो ये ऊपर का हिस्सा हो गया जहां पे नेल्स प्रेजेंट है, दैट इज डॉर्सम ऑफ द फुट। और नीचे का हिस्सा क्या हो गया, प्लेंटार रीजन, नीचे क्या हो गया, सोल वाला रीजन, तो दैट इज प्लेंटार। तो अगर हम डॉर्सी फ्लेक्शन की बात करें तो डॉर्सम एंड एक्सटेंशन, प्लेंटार फ्लेक्शन करें तो प्लेंटार, डॉर्सम ऊपर की तरफ, डॉर्सम ये डॉर्सी फ्लेक्शन एंड दिस इज प्लेंटार, तो प्लेंटार फ्लेक्शन। क्लियर, फ्लेक्शन, दिस इज एडक्शन, पास आ रहा है, दिस इज लेटरल रोटेशन, बाहर की तरफ लेके जाएंगे, दिस इज मीडियल, ये जो है बाहर, दिस इज लेफ्ट वन, तो बाहर की तरफ लेके गए, दिस इज मीडियल रोटेशन, ये अंदर की तरफ आएगा। देन दिस इज एबडक्शन, एब है तो दूर लेके जा रहे हैं पैर को। देन दिस इज एक्सटेंशन, ये ऊपर लेके जा रहे हैं, दिस इज फ्लेक्शन, बॉडी की तरफ लेके गए, पीछे लेके जाएंगे तो एक्सटेंशन, एडक्शन पास में लेके आए, एबडक्शन दूर लेके गए, मीडियल रोटेशन मीडियल बॉर्डर के पास लेके आए, एंड देन लेटरल रोटेशन बाहर की तरफ लेके गए। देन ऑफ द नेक, ऐसे ही हमारे नेक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। देन लेटरल रोटेशन होता है। ओपनिंग ऑफ द माउथ, माउथ को अगर हम ओपन करते हैं
फिर बंद करते हैं। दिस इज व्हेन लोअर जॉ इज लोअर, जबकि लोअर जॉ और लोअर हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ द माउथ। एंड देन क्लोजर ऑफ द माउथ, जो मुंह को अपना बंद कर लेते हैं, दैट इज ओपोजिशन ऑफ द इसमें। देन प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन, इसमें क्या है, जब हम ये वाला हिस्से को आगे और पीछे, आगे और पीछे, जब कोई डांस या कथक करते हैं तो आगे और पीछे लेके जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेक वहीं प्लेस्ड है, बट हमारे जो ये रीजन है उसको आगे और पीछे लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन। सी दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल पोजीशन है जो खड़े हैं इसमें। दिस इज एक्सटेंशन, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल बढ़ गया है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एंड दिस इज फ्लेक्शन, एंगल डिक्रीज हो गया है। दिस इज राइट लेटरल फ्लेक्शन, राइट वाली साइड गया है तो राइट लेटरल फ्लेक्शन, लेफ्ट वाली साइड जाएगा तो लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। दिस इज राइट रोटेशन एंड दिस इज लेफ्ट रोटेशन। इन द ट्रंक, अगर हम ट्रंक की बात करें ऐसे ही होता है, पीछे जाएंगे खींचेंगे अपनी बॉडी को तो एक्सटेंशन, आगे फॉरवर्ड करेंगे तो फ्लेक्शन, साइडवर्ड्स में लेके जाएंगे लेटरल फ्लेक्शन, एंड साइडवर्ड ऑफ दी अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो भी लेटरल रोटेशन। जब लेटरल से शुरू करेंगे और रोटेट करेंगे अपनी पूरी ट्रंक को, दिस इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। सो दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, this is lateral flexion and this is called rotation or twisting we call it. Then terms prescribed for the muscles, हम अगर बात करते हैं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करी कि हम जैसे बॉडी में मूवमेंट लाते हैं आगे पीछे इधर उधर, उसकी टर्म्स के बारे में बात करी कि कौन कौन सी टर्म्स को क्या क्या बोला जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मसल्स में, तो मसल्स भी तो अपनी जगह से हिली हुई है, या फिर मसल्स भी तो एक जो है वो भी तो मूवमेंट लेती हैं, बट वो ज्वाइन हो रखे एक ऐसी जगह पे कि जहां से हम अपना मूवमेंट बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं। तो जहां वो जुड़ी हुई है, जहां से वो स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, कि वो पॉइंट जहां से वो ओपन है, जहां से वो वहां पे स्टार्ट हो रहा है। देन इंसर्शन, जहां वो जाके जुड़ेगी। सपोज वी विल टेक एन एग्जांपल, इज नॉट लाइक वी आर सपोजिंग ओनली। अगर हम देखें तो हमारी मसल यहाँ शोल्डर जॉइंट से यहाँ पे जुड़ी है, स्टार्ट हुई है, और हमारे एल्बो जॉइंट पे आके लगेगी, तो जहां से वो स्टार्ट हुई, इंसर्शन इज द शोल्डर पॉइंट। अगर मैं पूछूं द नेम द इंसर्शन, तो वी विल से द शोल्डर, एंड द ओरिजिन इज दैट शोल्डर एंड इंसर्शन इज द एल्बो जॉइंट। तो इंसर्शन मतलब जहां वो इंसर्ट हो रही है, जहां वो एंड हो रही है उस मसल का, उसको हम बोलते हैं इंसर्शन। तो दो पॉइंट्स होते हैं कोई भी मसल का, या कोई भी अगर एक थ्रेड भी देखे तो थ्रेड अगर वहां से शुरू हुआ है और वहां से लेके इस एंड तक जाएगा, तो अगर हम बात करें तो वो इधर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, तो ए पॉइंट जहां से वो शुरू हुआ दैट इज ओरिजिन, एंड बी पॉइंट जहां पे जाके वो लगा दैट इज इंसर्शन। देन दिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इंसर्शन। ये इसके ओरिजिन है, ये मसल थी, ये दो जगह से ओरिजिनेट हुई है। सपोज अगर हम थ्रेड को देखें तो थ्रेड यहाँ पे ऐसे दो थे और आगे जाके एक बन गया, तो दो थ्रेड्स थे और आगे जाके एक बन गया वो, तो दो क्या हो गए उसके ओरिजिन हो गए, और एक क्या हो गया जहां पे जाके वो जुड़ा, वो क्या हो गया, इंसर्शन। देन देयर आर द वेसल्स, जिसमें आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज एंड ऑस्टोमोसिस की बात करेंगे। आर्टरीज जिसमें हमारा सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड खुद अपने वर्ड बताता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन लेके जाएगी वो। आर्टरी क्या करेगी, ऑक्सीजन लेके जाएगी, कहां से लेके जाएगी, हार्ट से दूर लेके जाएगी, हार्ट से दूर जाएगी तो कहां जाएगी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो दैट द कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे from the heart with the exception of the pulmonary and umbilical artery which carry the deoxygenated blood. Arteries and resemble trees and because have the branches. अगर हम देखें आर्टरीज को लर्न करने के लिए तो हमारे पास क्या है, पेड़ की ब्रांचेस। तो ब्रांचेस जो है वो भी बहुत सारी फैली हुई हैं, ऐसे ही आर्टरीज भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी फैली हुई है। और क्या करती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ इसका अगर हम उल्टा कर दे, अपोजिट कर दे, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड कर दे, ये दूर लेके जा रही है हार्ट से, ये हार्ट के पास लेके आएगी, तो वो क्या होगी, वो होगी वेन्स। देन कैपिलरीज, अगर हम इन दोनों वेसल्स को जोड़ दें और ये ऐसे हमारे बिल्कुल कैपिलरीज बन जाएंगी अलग अलग पूरे इसमें, तो उसको हम बोलेंगे कैपिलरीज, जिसमें थोड़ी आर्टरीज और थोड़ी वेन्स दोनों मिलके एक कैपिलरीज बनाएंगी और वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स को सबको जोड़ के कनेक्शन बनाएंगी पूरे ब्लड सप्लाई का। देन एनास्टोमोसिस, जिसमें प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशंस ऑफ दैट बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स, जितने भी आगे पीछे की नेबरिंग होगी, या नेबरिंग मतलब आपकी पड़ोसी, उसके आसपास जितने भी वेन्स आर्टरीज होंगी उन सबको जोड़ता है। इधर से उधर ब्लड ना जाए,
उसका ध्यान रखता है, और कौन सा ब्लड कहाँ जा रहा है उसका ध्यान रखता है, और जोड़ता है एक दूसरे को, इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस. सो दिस इज आर्टरी, रेड वन, दिस इज वेन्यूल, ब्लू वन, एंड दिस इज कैपिलरी, दिस होल इज कैपिलरी. तो ये आर्टरी और ये वेन्यूल्स दोनों जुड़ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज. ओके, थैंक यू सो मच.